Thank you, Sumit ji. Thank you for inviting me. I think it is day 3 for us. Day 1, we spoke about MSME, its registration, how we as chartered accountants can grow with MSMEs, and how can we help MSMEs grow. So that was day 1's deliberation. Day 2 was more around taxation of the MSMEs and startups. Day 3 is about business plan, valuation, pitch deck, largely on that. I will quickly share my screen and so that you can see what I'm talking about. Uh, Sumit, you'll have to make me host or co-host. I cannot. While the sharing access is being given, a couple of things last time, friends, we discussed, which were an action to be picked up today. One was what are the central government schemes if we can have access to that. So, from a central government scheme perspective, in the current presentation, I've added few slides. There are 27 schemes in total, which are being at a very high level collated for all of you, which talks about a very high level what is the scheme all about, who's the beneficiary, what is the type of benefit. So we will, after this today's deliberation, if we'll find time, we'll discuss those schemes, or maybe have a glance of those schemes, and then PPT will be shared with you, or the schemes Excel will be shared with you where the list of schemes is available. Second thing that we discussed in the last presentation was verification of MSME certificates. And Uh, now, Pankaj, you can share. You are host now, so you have okay, control. okay, fine. I will share that. So last time we discussed about. Hope you all can see the screen now. Yes, Pankaj. Okay. So last time we discussed about the verification of registration. The time I last checked the website and time I checked yesterday after the question, yes, there is now a provision to check and verify the MSME certificate with the help of which is UN number, or the MSME registration number, which is called Udyam registration. Registration number along with CAPTCHA you can put in, you can verify the details of the registration, so that one query stands corrected, because the last update I had was the verification wasn't available. Now it is. So friends, let's move on to today's presentation now that we can all see the screen. uh, Today we will talk about where we are, business plan, financial plan, how can we convert business plan into financial plan, what is the pitch deck, are the inclusions in the pitch deck, business valuation क्या होता है, और methods of valuation क्या होते हैं, and then we have got appendices where we talk about each of the method of valuation in detail. Depending upon the time availability, we'll see if we'll be able to get into detail of all the methods. We will, else we'll stop at the summary level itself. uh, Dear friends, this is my favorite slide. I think we spent last time also quite an amount of time to understand the slide. I'll this time take a quick, 1 minute or so on this slide. This talks about where we as chartered accountants can help MSMEs and where the MSMEs are today. MSMEs today are at the stage where they are on the ground more than digging the minerals, ores, and the gold, which is at the last. So, so are we as chartered accountants. We are helping a lot of startups, MSMEs at a ground level, at a soil digging or water digging level, lesser at the mineral and oil digging level, and probably minimal at the gold digging level. The endeavor of this session also will be to discuss how we as chartered accountants can make this reverse pyramid a correct pyramid, where we in the maximum number can help do the gold digging to the startups and MSMEs. Similarly, we can convert MSMEs also who are at the top and the ground digging level or a soil or water digging level to a gold digging level. So this is the fundamental of this slide, and I think we all chartered accountant friends would agree that this is real need of the hour, considering the focus of the government on the MSMEs and the scope and the pace at which MSMEs and startups are growing. So a lot of opportunities in this space, dear friends. It is on us of how fast and in what manner can we take the benefit
of working on this opportunity together. So what is a business plan? So just a second. Yeah. So what is a business plan? So it is a written document which talks about activities, objectives, strategies, departments, what is our mission, vision, and how company plans to achieve its goals is what the business plan does. हमें हेल्प करता है डिफाइन करने में खुद के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए और मार्केट विच इज द ओपन मार्केट वेयर द बिजनेस ऑपरेट्स, उनके लिए डिफाइन करने के लिए कि व्हाट इज इट दैट वी वांट टू डू, हाउ आवर कंपटीशन इज डूइंग, व्हाट आर द things, actions, plans that we need to make so that we stay a on top of the competition in terms of information, on top of competition in terms of execution also, so that हम उसको सही डिसीजन को सही समय पे ले पाएं और उसके उससे अपने बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर पाएं. बिजनेस प्लान बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बनाया जाता है depending upon who is looking at it. So we as professionals who are helping people and MSMEs to prepare the business plan should look at business plan from the point of view of various stakeholders involved. Uh, what could that be? So few inclusions could be: this helps us with the foresighted critical decisions and crisis management. In foresight, what we expect in future to be, what are the critical decisions, क्या crisis हमें आ सकता है, उसको आज कैसे manage करना है. It helps us figure out the gaps or kinks in the business strategy. If we find there are gaps in the business strategy, then our business plan will speak aloud about it, saying this is where our growth is going down, number of acquisition इतना होना चाहिए था, it has gone down, हमारा market का spend मार्केटिंग का स्पेंड एक्स होना चाहिए था, वो या तो 2x हो गया है या 1x हो गया है, वॉट एवर वेरिएशन इट हैज हैपेंड, बिकॉज ऑफ दैट आवर बिजनेस परफॉर्मेंस इज गोइंग डाउन. सो बिजनेस प्लान, when we prepare a plan and monitor it, it will help us fix that gap or a kink in the business plan. It helps us assess the viability of the business. बिजनेस प्लान बनाने से हमें पता लगता है कि हमारा बिजनेस क्या वायबल है मार्केट में, क्या इस प्लान में इतना इतना अपॉर्चुनिटी हमें दिखती है कि बिजनेस को हम 5 साल 10 साल 20 साल चला पाएंगे, और इट इज अ शॉर्ट लिव्ड बिजनेस जो कि मे बी 2-3 साल के बाद नहीं चल पाएगा बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड थिंग्स. सो वो वायबिलिटी जो है वो बिजनेस प्लान से हमें बहुत इजीली निकल के आती है, और स्ट्रेटेजिकली हम उस अनवायबल प्लान को भी या अनवायबल बिजनेस को भी वायबल बना सकते हैं स्ट्रेटेजिकली, थिंकिंग डिफरेंटली, थिंकिंग इनोवेटिवली एंड विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. सो वो व्यू हमें जो है बिजनेस प्लान के थ्रू मिलता है, और हम उस व्यू को इम्प्लीमेंट भी करा सकते हैं with the guidance that we can give to the management. It helps us to optimize the business and set better objectives and benchmark. ऑब्जेक्टिव और बेंचमार्क सेट करना बहुत जरूरी है, जो बिजनेस प्लान से बहुत इजीली हो सकता है अगर हम तरीके से बहुत अपना माइंड एफर्ट लगा के विजन से बिजनेस प्लान को बनाएंगे. इट विल हेल्प अस in doing these things: benchmark, better objectives and optimization of business plan. अगर business plan हमारा sound strong होता है and it helps us give the right information at the right time, then it helps us do two more things, which is if you want to secure finances from various sources including the debt, equity, VC house or whatever ways, maybe preferential, etc. It helps us do that, right? सो फाइनेंस सिक्योर करने में और फंडिंग ऑफ ऑपरेशंस, डे टू डे ऑपरेशंस को फंड करने में हमें हेल्प करता है. देन इट हेल्प्स एज एंड एक्ट्स एज गाइड फॉर योर सर्विस प्रोवाइडर्स. जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हमारे हैं, हमें किस सर्विस प्रोवाइडर को किस प्रपोर्शन में रिक्रूट करना है, उनसे क्या काम कराना है, वो हमें क्या टैंजिबल आउटपुट्स देंगे, क्या हम केपीआई के बेसिस पे उनसे आउटपुट ले सकते हैं और उसको डिलीवर कर सकते हैं, वो भी हमें हेल्प करता है बिजनेस प्लान, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर बेक्ड इनटू द बिजनेस प्लान. Last but not the least is it helps us reduce risk. So how do we reduce risk? The way we can reduce the risk is to first identify the risk. हम आइडेंटिफाई करते हैं बिजनेस में रिस्क क्या है, जो हमें रिस्क बेक इन करना होता है अपने बिजनेस प्लान डॉक्यूमेंट में. जब हम रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं तो हम उसको देखते हैं वो रिस्क क्यों हो रहा है, व्हाई दैट रिस्क इज देयर. देन वी सी व्हाट आर द ड्राइवर्स ऑफ दैट रिस्क, एंड विद दोज ड्राइवर्स हाउ कैन वी actually
रिड्यूस दैट रिस्क, हम उसके अगेंस्ट क्या स्ट्रेटेजी बनाएं कि हमारा रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाए, जिससे so risk is one of the key decisions which helps an organization to grow and perform. So risk reduce होता है, उसके अकॉर्डिंग हम रिस्क मिटिगेशन प्लान बनाते हैं और उसके बेटर डिसीजंस लेते हैं. Better decisions could be risk related decisions and non risk related decisions also, which could be day to day business operations strategy, go to market strategy, MVP, POC, प्रोटोटाइप, वो सब के डिसीजंस हम बिजनेस प्लान के थ्रू ले सकते हैं. एंड इट हेल्प्स अस गिव द क्लियरेस्ट पॉसिबल व्यू ऑफ द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो ये भी हमें बिजनेस प्लान डॉक्यूमेंट से हमें हेल्प मिलती है. इसके बाद सॉरी थोड़ा सा आई थिंक bandwidth में lag है, slides are moving a little slow, so bear with me please guys. Now we talk about what I'll do is I'll switch off my video for some time so that bandwidth जो है slides को impact नहीं करे and I can switch off and on in between. So what happens is financial plan क्या है अब इसके बाद. ये तो हुआ business plan which talks about how my business is growing, what is my plan of working in the organization, क्या मेरे को बिजनेस किस सोर्स से आएगा, रेवेन्यू क्या होना चाहिए, रेवेन्यू के ड्राइवर्स क्या होंगे, कॉस्ट के ड्राइवर्स क्या होंगे, वो सब हमने आइडेंटिफाई कर लिया. अब इसको मनी टर्म्स में कैसे ट्रांसलेट करें, दैट विल कम आउट एज अ फाइनेंशियल प्लान. सो फाइनेंशियल प्लान is an updated version of the business plan which includes how we can monetize the business. उससे पैसा कैसे जनरेट होगा, प्रॉफिट कैसे जनरेट होगा, वो हमें हेल्प करता है फाइनेंशियल प्लान. स्मॉल बिजनेस ओनर्स को कैश फ्लो मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल प्लान बहुत हेल्प करता है, जो सिचुएशंस बताता है कि कौन सी प्रोबेबल सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं इन टाइम टू कम जहां हमें कैश शॉर्टेज आ सकती है. फॉर एग्जांपल सीजनल फ्लक्चुएशन इन वैल्यू, आपका बिजनेस का नेचर ऐसा है कि सीजनल फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, सो वो हमें हेल्प करता है. फाइनेंशियल प्लान हमारा फोरकास्ट करता है फ्यूचर परफॉर्मेंस को, prepared in an Excel sheet और किसी भी सॉफ्टवेयर में हम बना सकते हैं. नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स इन द मार्केट व्हिच हेल्प अस प्रिपेयर द फाइनेंशियल प्लान इन एन एफिशिएंट मैनर, वो हम कर सकते हैं. इट एक्ट्स एज टूल वेयर वी कैन मॉनिटर आवर फाइनेंसेस, अपनी प्रोग्रेस देख सकते हैं और जो ट्रबल आने आ रही है या आने वाली है उसको हम प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं और उसके लिए मिटिगेशन प्लान बना सकते हैं. और फाइनेंशियल प्लानिंग डॉक्यूमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इसको टाइम से नहीं किया या अपने क्लाइंट को टाइम से एडवाइस नहीं किया तो क्लाइंट माइट लूज द साइट ऑफ द बिजनेस. इसलिए हम लोग रेकमेंड करते हैं कि फाइनेंशियल प्लान जो है हर कंपनी को मिनिमम क्वार्टरली बेसिस पे बनाना चाहिए और उसको मंथली बेसिस पे मॉनिटर करना चाहिए. बट स्मॉल बिजनेसेस के लिए वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता, इसके लिए हम उनको बोलते हैं एटलीस्ट एनुअली जरूर करो और उसको मंथली मॉनिटर करो, so that you can be on top of your business, else there will be problems when you tend to get into the execution of business monitoring, और आप मिस कर जाओगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बिकॉज वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होंगी. You move on to the next slide. So this then talks about again further how do we convert the business plan into financial plan. नाउ हमने समझा कि बिजनेस प्लान क्या होता है, हमने समझा फाइनेंशियल प्लान क्या होता है, और अब समझते हैं इसको अगर हमें बिजनेस प्लान से फाइनेंशियल प्लान में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या चीज का ध्यान रखना है, कैसे हम इसको कर सकते हैं. बिजनेस प्लान और फाइनेंशियल प्लान वी ऑल नो आर ब्लूप्रिंट्स व्हिच टेल वेयर द कंपनी विल बी इन फ्यूचर. आज कहाँ है और आज से 2 साल 4 साल 5 साल वॉट एवर ड्यूरेशन वी मेक द प्लान फॉर, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कहाँ होगी, राइट. सो एवरी बिजनेस plan needs finances to get executed. So financial plan क्या करता है, वो कन्वे करता है स्टोरी को कि कब रेवेन्यू कितना आएगा, कैसे हम प्रॉफिट बनाएंगे. स्क्रीन करता है सारे कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान को विच कुड बी एज आई सेड सैलरीज कितनी है, मैन्युफैक्चरिंग है तो मेरा मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट कितना है, मेरा कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चरिंग उस कन्वर्जन का कॉस्ट कितना है, फ्रेट कितना है, इनवर्ड आउटवर्ड वॉट एवर ऑल एक्सपेंसेस. सो वॉट वी डू इज whatever step we take in any activity of the business, smaller, any smaller step will incur a cost or any smaller step will give us a revenue. So हम क्या करते हैं, हर उस स्टेप को मॉनेटरी वैल्यू असाइन करते जाते हैं, whether it is an outflow or inflow
be it on a cash basis, accrual basis, according to the plan that we are making. Generally हम सारे plans accrual basis पे बनाते हैं because cash flow statement हम separately maintain करते हैं. So उसको हम monetary value दे देते हैं और कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं हमारे बिजनेस प्लान से कि हमने क्या बिजनेस के लिए प्लान किया है और उसका फाइनेंशियल इंप्लीकेशन कैसे होगा. कैसे करते हैं? दी सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं फ्यूचर विजन और गोल ऑफ शेयर होल्डर. सो any business which runs for the benefit of the shareholder, so because they are the real stakeholders in the organization, उनका फ्यूचर विजन क्या है, बिजनेस का फ्यूचर विजन क्या है, आर दे थिंकिंग ऑफ सेलिंग द कंपनी इन नियर फ्यूचर और ऑपरेट फॉर द लॉन्गर टर्म, विल डिफाइन कि हम बिजनेस प्लान को फाइनेंशियल प्लान में किस तरीके से कन्वर्ट करना है. जो उनका थॉट है दैट विल डिफाइन कि मेरे की मैट्रिक्स क्या होंगे जिससे प्रॉफिटेबिलिटी आएगी या वैल्यूएशन आएगी या वैल्यू आएगी. मुझे बैलेंस शीट ज्यादा स्ट्रॉन्गर करनी है, मुझे वॉल्यूम्स पे प्ले करना है एज अ लीवर बिकॉज दैट इज माय विजन ऑफ माय कंपनी. और कैश कन्वर्जन साइकिल क्या है, इन हाउ मेनी डेज माय कैश कन्वर्ट्स बैक टू कैश इन माय बैंक अकाउंट. जिसका मतलब है मैंने कब परचेज किया, जहां मैंने कैश आउटफ्लो किया, परचेज करने के बाद मैंने मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चर या ट्रेड किया, मैन्युफैक्चर या ट्रेड करने के बाद वो इन्वेंटराइज हुआ, इन्वेंटराइज होने के बाद मैंने उसे सेल किया, सेल करने के एक्स डेज बाद मुझे पैसा आया. सो द डे आई हैड पुट इन मनी इन द बिजनेस, उसके कितने दिन बाद कैश वापस से कन्वर्ट होकर मेरे अकाउंट में आ गया, दैट इज द कैश कन्वर्जन साइकिल. जो बहुत बड़ा लीवर है कोविड टाइम्स में किसी भी बिजनेस के लिए, वो इंपॉर्टेंट है, वो हमें ध्यान रखना है. व्हाट इज व्हाट आर द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. मैंने लास्ट टाइम इस पर टच किया था कि हमें केपीआईज डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि मेरे बिजनेस के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या हैं जो कि मेरे बिजनेस को या मेरे विजन को चलाएंगे. सो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कैसे हो सकते हैं? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हमने लास्ट टाइम बात करी थी. की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कैसे हो सकते हैं? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हो सकते हैं कि अगर मुझे लॉन्ग टर्म चलाना है तो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, मेरा नेट प्रॉफिट परसेंटेज, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, करंट रेशियो क्या है और डेट इक्विटी रेशियो क्या है. और अगर मुझे इसको बेसिक पर्पस है टू सेल इट इन 5 years, देन माय केपीआईज इन एडिशन टू दीज केपीआईज विल बी what is the rate at which I am acquiring customers, what is the rate at which customers are coming back as repeat business, रेफरल पे मेरा क्या फोकस है, कितने कस्टमर्स रिपीट हो रहे हैं, कौन से कस्टमर्स कितनों को रेफर कर रहे हैं. सो दोज बिकम्स माय केपीआईज जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फाइनेंशियल प्लान में कन्वर्जन के. बिकॉज एज आई सेड एनी एक्शन विल हैव अ कॉस्ट, referral will also have a cost, repeat business will also have a cost, and retention will also have a cost. So we focus on that. Next is uh, so while we had defined business plan, we worked on strategy. The projections will help us find out estimated and anticipated sales and the expenses forecast, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी निकलेगा. जो गोल्स मैंने मेंशन करके रखे थे, इंश्योर करके रखे थे मुझे करने चाहिए, मैं वो गोल्स को देखूंगा, कॉस्ट प्लग इन करूंगा कि उस अचीव करने के लिए डिफरेंट सिनेरियोज में वील अचीव दैट कॉस्ट, विल क्रिएट रेंज विच इज ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली टू हैपन टाइप 3 सिनेरियोज बना लूंगा. सिनेरियो बिल्डिंग विल हेल्प मी टेक द राइट डिसीजन बेसिस वॉट एवर इज द परफॉर्मेंस इन ईच ऑफ द सिनेरियोज. सो वो मुझे हेल्प करेगा. इसके बाद मैं क्या करूंगा, वी विल लुक एट बेसिस सिनेरियोज, मुझे क्या क्या इंपैक्ट लेना है अपने फाइनेंशियल प्लान में, अपनी स्ट्रेटजी में और बिजनेस प्लान में, सो दैट सिनेरियो वुड चेंज फ्रॉम सिनेरियो ए टू सिनेरियो बी, विच इज 1 level up or 1 level below or 2 levels up, 2 levels below. Then what I do is I scrutinize the cash flow statement. मैं उस अपनी कंपनी की एसेट्स देखता हूँ, कंटिजेंसी प्लान करता हूँ और उसके हिसाब से अपने प्लान में कुछ अनोमलीज हैं तो करेक्टिव एक्शन लेता हूँ. सो दैट हेल्प्स मी टेक अ बेटर डिसीजन, दैट हेल्प्स मी मेक अ रोबस्ट एंड स्ट्रॉन्ग प्लान. फिर मैं अपने एक्चुअल रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट प्रोजेक्शंस, बिजनेस रेशियोज को थ्रू आउट द ईयर देखता हूँ टू सी इफ I have to modify something, whether I am on the right track or not. If I am on the right track, very good. If I am not on the right track, then which parameter needs to be worked upon? Then I work on that parameter, solve for that parameter, and accordingly take the actions. Next section is pitch deck. Before we take next section, I would like to maybe pause for 30 seconds to see if there are any questions. You can put your questions in the chat box and then I can pick them.
एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में आया हुआ है, हाउ डू वी चेक एंड वेरीफाई एमएसएमई सर्टिफिकेट? एट द स्टार्ट आई एड्रेस संदीप जी, द वेरिफिकेशन इज नाउ अनेबल्ड। आप एमएसएमई की साइट पे जाके आप वेरीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नंबर। If there are no further questions, then we move on. Okay, so we move on. Pitch deck. पिच डेक क्या होता है? पिच डेक एक डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है इन्वेस्टर्स को कि मुझे मेरा बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, what is it that I want to do in business, what is it that I still do in business if my business is existing, if it is at an idea stage, then with an idea what I want to achieve, मेरा क्या टारगेट है। और वो एक impressive and first impression statement होता है which helps attract people, that people could be relevant to your need. If your need is to gain investment, then investors would be a relevant people. If your need is to get mentors, then mentors could be relevant people, and mentors can then see your pitch deck to decide and decipher what is it that your business intends to do, how is it that your business works. So वो basic pitch deck का purpose होता है। presentation होता है, as I said, फर्स्ट कम्युनिकेशन होता है, जनरली मनी रेज करने के लिए यूज किया जाता है। इन्वेस्टर्स उसमें देखते हैं आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आप अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कैसे कर रहे हो, बिजनेस अपना आप अपना बिजनेस मॉडल शेयर करते हो, और मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी पे बेसिकली काम करते हैं कि आप मोनेटाइज कैसे करोगे अपने बिजनेस को। और अपनी टीम से इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी हो जाता है उस केस में कि हाउ योर टीम इज परफॉर्मिंग एंड लुकिंग एट इट। जनरली पिच डेक हिस्टोरिकली फेस टू फेस मीटिंग्स में ज्यादा यूज होता है, अब ऑनलाइन मीटिंग्स में ज्यादा यूज होता है। कैन बी यूज्ड विद कस्टमर्स, पार्टनर्स, को-फाउंडर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स आल्सो। बहुत सारे पिच डेक्स में बाय द एक्सपीरियंस वी ऑब्जर्व्ड दैट pitch deck में in founders would write we have a first mover advantage. Generally these are not the statements to be written. If we can be more creative, that helps a lot. तीन की चीजें बहुत जरूरी होती हैं पिच डेक में। वन इज हाउ क्लियरली एंड इन सिंपल वर्ड्स यू कैन एक्सप्लेन योर बिजनेस, द आइडिया, रेवेन्यू जनरेशन मॉडल एंड अदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, क्लियर एंड सिंपल। हाउ कंपेलिंग इज योर पिच, हाउ कंपेलिंग is your pitch when you are entering, when you are having a conversation with people, वो इंपॉर्टेंट होता है। एंड देन हाउ इजी इज इट टू एक्ट ऑन और नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। Just a second, I think there is someone coming in the meeting. Let me try and admit. Okay. इंक्लूजन्स क्या क्या होने चाहिए पिच डेक में, उस पर बात करते हैं। पिच डेक में जनरल इंक्लूजन्स होते हैं, इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज द बिजनेस, व्हाई वी आर हियर, क्या उसमें हम लोग एडिशन वैल्यू ऐड करते हैं, वो इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन होता है। देन वी से व्हाट इज द टीम बिहाइंड द आइडिया, हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, क्या कौन सा टीम मेंबर क्या अपनी एक्सपर्टीज लेके आ रहा है, उसकी बात करते हैं, so that it is relevant to the business. Then if we talk about what is the problem that we are trying to solve, हमने मार्केट में एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, that in the market for the area that we work on, this is the problem statement. For example, उबर ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करी थी कि जो ड्राइवर्स होते हैं टैक्सी के, they do not get enough revenue and people have a problem where they are not, you know, in that mode of ease when they need a taxi. उनको टैक्सी स्टैंड से अरेंज करना पड़ता है या किसी को कॉल करना पड़ता है, उसमें डिलेज होते हैं, एंड दे डू नॉट नो कि टैक्सी पर्सन व्हेन विल द टैक्सी पर्सन कम, एंड टैक्सी पीपल फेस डिफरेंट प्रॉब्लम्स। मोड ऑफ पेमेंट, पैसा कैसे आएगा, आप बार बार कैश अरेंज करते हो, कैशलेस वर्ल्ड में काम नहीं कर पाते हो बिकॉज ऑफ ट्रेडिशनल वेज ऑफ कैश एंड नेगोशिएशन ऑलवेज। So they solved this problem saying that we can bring that ease of hiring a taxi. How did they solve is very important कि अब मैंने प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर ली, आई लुक्ड एट इट एंड रियलाइज्ड दैट दिस इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम इन द मार्केट। तो उसका सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज इट दैट वी आर डूइंग एंड हाउ आर वी ट्राइंग टू सॉल्व फॉर दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो हम उसको सॉल्व करते हैं, उसका सोल्यूशन becomes a very important slide to present in any pitch deck. How do we solve them? Really helps. सिर्फ solution may not work because there could be competition also who's solving a similar problem. So हम उसमें देखते हैं
कि हाउ इज इट दैट माय सॉल्यूशन इज यूनिक इन द मार्केट, जिसको बोलते हैं यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। मेरा सॉल्यूशन यूनिक और स्पेशल कैसे है, मैं लोगों से डिफरेंटली कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। अगर मेरी प्रॉब्लम ही मैंने फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया तो मेरा जो सोल्यूशन है वो तो हमेशा यूनिक होगा। बट अगर ऑलरेडी कुछ लोग कर रहे हैं तो मेरा सोल्यूशन उनसे कैसे यूनिक है। लाइक उबर आने के बाद ओला आया, ओला ने बोला आई रियलाइज कि एवरीवन विल नॉट बी एबल टू गिव अ credit card on online payment, so my cash payment and wallet works differently than Uber's wallet. Now obviously they have looked at solutions differently, but initially ऐसे ही start हुआ था. So how do you become unique in providing the solution really helps. तो अब हमने बात करी कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम के बाद बात करी हमने कि उसका सोल्यूशन क्या है, हम यूनिक कैसे हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट होता है ये यूनिक होने के बाद अब मेरा एक्चुअल प्रोडक्ट कैसा आएगा, मेरे कस्टमर को प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, मेरा बैकएंड पे प्रोडक्ट कैसे काम होगा। सो वो प्रोडक्ट हम बताते हैं कि मेरा प्रोडक्ट और सर्विस एक्चुअली स्टेप 1 से लेके स्टेप 2 3 4 5 वर्क कैसे करेगा। So that is again very important aspect when it comes to inclusion in the pitch deck. फिर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोडक्ट भी आ गया, अब मार्केट में इसको ट्रैक्शन कैसे मिलेगी, मार्केट में कस्टमर्स को कैसे पता लगेगा कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, कस्टमर्स यूज करेंगे तो बिजनेस को कैसे पता लगेगा यस द प्रोडक्ट हैज पोटेंशियल एंड कस्टमर्स आर लविंग इट। सो उसके लिए हमारा क्या प्लान है वो मेंशन करना बहुत जरूरी होता है, विच हैज अ मेजरेबल सेट ऑफ कस्टमर्स जो कि अपना पोटेंशियल, हमारे प्रोडक्ट का पोटेंशियल प्रूव करते हैं बाय द यूसेज। ट्रैक्शन के बाद फिर हम बोलते हैं कि नाउ दैट x number of customers would have tested or will be testing and this is how potential has been secured through maybe POCs, prototypes, MVPs. Then we say अच्छा अब इसके बाद what is the size of the market where I can expand and operate. तो हमें मार्केट का साइज प्रेडिक्ट करना होता है विद द रेलेवेंट डेट फैक्ट्स एंड डेटा। नाउ ये फैक्ट्स एंड डेटा मुझे कैसे मिलते हैं, फॉर वेरी सिंपलिस्टिक प्रोडक्ट्स फैक्ट्स एंड डेटा मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। फॉर मोर कॉम्प्लिकेटेड और टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट्स देयर आर रिसर्च पेपर्स जिनके बेसिस पे हमें बहुत सारा मार्केट इंफॉर्मेशन पता चल जाता है ऑफ वेयर द फ्यूचर customer would lie, where the future of the business would lie. That helps me evaluate and analyze and with the help of data assess कि मेरा market size कितना बड़ा है। So वो important चीज होती है so that investors, customers, whosoever is interested would know कि मैं किस competition मैं किस market में operate करना चाहता हूँ। Then next important is अब ये सब तो मैंने कर लिया। If I am not unique and there are competition, then we say what is it that competition is doing, what are the solutions that they are providing and what is my alternate solution, and how can I or how am I trying to solve this problem along with competition or in a different fashion. So वो उस पे बात करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि बिजनेस मॉडल क्या है। सो दिस इज ऑल गुड हंकी डोरी, मेरा प्रॉब्लम ही है, सोल्यूशन ही है, यूएसपी ये है, प्रोडक्ट ये है, ट्रैक्शन हो गया, मार्केट आ गया। फिर अब पैसा कैसे आएगा, इसके बाद कितना कितना क्लाइंट्स कन्वर्ट होंगे, क्या मेरा पर पर्सन रेवेन्यू है, क्या मुझे उसमें से शेयर रेवेन्यू कॉस्ट रिड्यूस करने के बाद प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगी। दैट इज ऑल विच इज कवर्ड इन बिजनेस मॉडल। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि बिजनेस मॉडल विल डिफाइन एंड डिसाइड कि मेरा प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है तो कितनी है और कितना लॉन्ग टर्म है, विच विल देन लीड टू नेक्स्ट स्टेप विच इज investing. Now if the profitability is there and attractive enough, investors would be interested. So then we'll say okay, with this business model this is my planned budget for spending the money, whatever is my planned budget to spend the money will define मुझे कितना पैसा रेज करना है, क्या कितना कितना वैल्यूएशन है मेरे बिजनेस की, और मुझे उस पैसे को रेज करने के बाद एज पर द बजट आई वुड लाइक टू स्पेंड दैट मनी इन देयर। सो इन्वेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इन्वेस्टिंग की स्लाइड्स में या इन्वेस्टिंग की इंफॉर्मेशन में एक इंफॉर्मेशन बहुत क्रिटिकल होती है विच इज कि जब मैं पैसा रेज कर रहा हूं तो व्हाट आर द एग्जिट ऑप्शंस which are available with investors after a point in time. Investors might want to exit maybe
5 years from now, 2 years from now, 5 years from the 3 years from now, but what at various stages would be investors options to exit, और उसके केस में आप जो है उसको एग्जिट के टाइम पे कितना वैल्यूएशन, कितना रेवेन्यू आप दे पाएंगे. Then the last set of information which is very important is your contact details. जो भी founders हैं जिन्होंने भी ये pitch बनाया है, maybe founders, consultants, we as chartered accountants, हमारा set of information बहुत important होता है in terms of contact details, so that if someone is interested, then they can contact us for any queries, questions and meetings if they want to have. So these are key inclusions in the pitch deck. Now before we talk about business valuation, any questions? Okay, we move ahead. Business valuation. Business valuation होता है the process of where we determine the economic value of a business over a period of time, how the business will perform or is expected to perform, उसकी आज valuation निकालते हैं. That is what primarily is business valuation. We all as professionals know that. It helps the management to look at the prospective future earning, market value of company's assets, capital structure, and then basis that we assign the value to the business. It helps to determine the fair value for reasons which may include sale value, established partnership ownership, taxation, merger acquisition. उन सब perspective से हम business valuation को assess करते हैं पूरी business की life cycle पे, which helps as an effective management tool when it comes to accomplishing our goals and objectives, and when it comes to raising funds basis that valuation. So for example, we value an organization or our organization at, let's say, a $10 million, and we want to raise a $1 million in funding. Then we say, okay, at a $10 million valuation, we are okay to share a stake of 10%. So that is how valuations are used practically in terms of raising money from the investors. एक बेसलाइन बेंचमार्क प्रोवाइड कर देता है कि मेरे बिजनेस का कितना वर्थ होना चाहिए, और अगर मुझे इस बिजनेस वर्थ को इंक्रीज करना है, देन व्हाट एक्शंस एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी नीड टू टेक टू improve the valuation of the business. This also provides a better knowledge of company's assets, numbers that we need to gain in the valuation process, so that we get basis the valuation, maybe insurance of the business, maybe reinvest the money into business so that valuation can increase, sell the business, at what valuation we sell the business so that we still make a profit. That is an important aspect. If you want to really sell the business, then true value of the company becomes critical for you, because at the negotiation table, that will act as a anchor point to negotiate and exhibit to the person who's interested to buy what your company's worth is, and how in the future the income or valuation grow की जा सकती है. So this is a real eye-opener document which can be used for various other purposes. This helps to maybe assess what new technologies we can implement, how would then valuation be changed if we implement new technology, we hire skilled employees in order to implement that technology, we run businesses in a effective and efficient manner. So this is another use. Obviously, as we spoke initially also, it helps us with the funding. It helps us to know value, assets, liabilities का net value, and we can then secure the funds basis the valuation. Methods of business valuation. We all have looked at these valuations while valuation methods while we were doing our studies. There are around 20 methods of valuation I picked up, maybe top 12 which are more used in the business on a day-to-day practical basis. So I'll probably go to the next slides to talk about this in line by line. Market value method, which determines the value of the business basis the comparable company जिसके लिए हम transaction कर रहे हैं. That's a market value. Book value, whatever is in the books, basis
The balance sheet, we assess the value of the business. That's a book value method. Net asset method, again, fair value of assets and liabilities. Return on investment, what kind of ROI we are looking at, what an investor could potentially receive if he or she buys the business. That's an ROI method. Discounted cash flow, again, projected cash flows, net present value of those projected cash flows, which is net of inflow and outflow, helps us do that. Capitalization of earning method, which is what is the future profitability of the business based on cash flow, ROI, and expected value, helps us give the capitalization of earning method. I mean, I can talk at length on this, but then important is these methods we have been, looking at in our times of doing CA as well. So I'm not going that detail in these methods because we all know that. Next slide, which is on the typical, method which are used, that I'll talk about. Again, only few of them, so that we focus on what is being used today. Like multiples of earning, we say, let us say my earning is X, and I foresee, basis the business plan and financial plan, that my earnings will grow 10% every year. So what will be my earnings in next 5 years would give me potential of the business's earning, and accordingly I can put that valuation in place. Burkus method for startups and MSMEs where the investment is not accessible in money terms, where it is at an idea stage, where it is where the importance of the business lies in strategic relationships or technology, the latest technology that we intend to implement, and future technologies which will help the business. उन केसेस में बर्कस मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बर्कस मेथड क्या करता है? इट लुक्स एट द बेसिक वैल्यू टेक्नोलॉजी का, एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स की मार्केट में क्या वैल्यू है, क्या प्रोडक्शन आएगा, कॉन्सिक्वेंट सेल्स उसकी वजह से क्या होंगी, और उसके बेसिस पे एक असेसमेंट की जाती है. जो मेथड स्टार्टअप वैल्यूएशन का मेथड है, ये बहुत सब्जेक्टिव मेथड है. दीज आर नॉट hardcore data driven methods like previous methods, which are basis balance sheet, which are basis something which is available for us for our competition. These methods are more subjective. जब मेथड सब्जेक्टिव होते हैं, तो जब आप नेगोशिएट करते हो इन्वेस्टमेंट्स के लिए, then at that point in time the power of negotiation to our favor is little limited, because then it involves a lot of subjectivity in this, in the negotiation. So but in that, Burkus is one of the key method which is being followed. Next is risk factor summation method, which talks about the quantitative consideration of all the risk associated with that business, which can affect the return on investment. So हम बोलते हैं कि एक X business है which will give me, let us say, a return of 15% as an example on a annual basis. Now I say, for a 15% return or a 20% return, what are the risks associated with that business? Every risk we assign a value which is in terms of ROI. So what we do is, let us say there are 5 risks, and we assign a value on that risk, each risk, and we come to a value for each risk, as a total of that is, let us say, 5%. Then we say a 15% ROI reduced by the risk factor summation of 5% will give me 10%. Now whatever valuation will happen using earlier methods will be at a 10% on a net ROI basis. So that is risk valuation, risk factor summation method. फिर नेक्स्ट मेथड आता है विच इज वेंचर कैपिटल वैल्यूएशन. वेंचर कैपिटल वैल्यूएशन होता है वेयर द इन्वेस्टर्स जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, दे लुक एट द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम वेयर दे एक्सपेक्ट एन एग्जिट प्राइस फॉर एन इन्वेस्टमेंट. वो उसको एस्टिमेट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, नॉट फ्रॉम अ स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू. फ्रॉम देयर दे कैलकुलेट इफ वी आर इन एंटरिंग टुडे, and if we exit, let us say, in 3 years from now, what is the post money valuation of the business today? So whatever is the post money valuation today, I discount whatever return I want. Whatever return is discounted, whatever valuation after the discount comes, is my pre money valuation. उस pre money valuation पे x value पे अगर मैं 1/10 of x दे रहा हूँ, then I will look for 10% of stake in the company. Or initially, if I want to give debentures, then accordingly, if I want to give preferential, then on various bases according to the
venture capitalists interest in the organization. Then comes the valuation by stage. Again, another subjective method which works on rule of thumb, very rough range estimate used by angel investors largely and venture capital firms to the minimum, which gives them a rough number saying, you know, you are at a seed stage, or you are at a bootstrap stage, or you are at growth stage. If you are at this stage in this industry, X is what I see as value. Then we try and negotiate on that. So which is valuation by the stage method. Now, again, as I said, subjective methods of valuation. Comparable company transaction. Comparable company transaction method really talks about the similar company or the comparable transaction in which we are entering for a company. उसका business model, उसका client base, similar business का, उसको लेके we compare that what is the value of that transaction in that company, and we try and replicate it here with some modifications depending upon the specifics of the startup that we are entering into an arrangement of valuation. So this is largely about the methods of valuation. Now we can move on to appendices where we have first of all central government schemes to talk about, because वो last time की एक requirement थी. And then अगर in methods में detail में जाना है, but methods में detail I can probably share the slides if we want to. And we can move on to central government schemes to begin with. Since central government schemes is a entirely different topic than today's topic, again I would like, if people have questions, they can put it on a chat box and then we can address those questions. Any questions? सुमित जी कुछ क्वेश्चंस हैं? Sumit ji, are you there? Hello? Okay. There's an input coming in. We will discuss about schemes. Whatever detail possible. Schemes, Meetu ji, is a very hefty kind of a document. बहुत सारे parameters, बहुत सारे conditions होते हैं, तो सारे conditions for all schemes we may not be able to discuss. What I have done is I have prepared a 4-column basic information on this scheme for every scheme which is there by the central government. उसके बारे में बात करेंगे. Then if you want to talk about and discuss any specific scheme, then I have the links to all the scheme documents I can open and we can run through any scheme document if you want. रवि जी, यूपी स्कीम्स आज के सब्जेक्ट में हमने सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स रखी थी बेसिस इनपुट्स फ्रॉम द लास्ट सेशन, बट आपको यूपी स्कीम में क्या चाहिए आप मेरे को प्लीज आफ्टर द सेशन मुझे आप बता देंगे या मुझे मैसेज कर देंगे. मेरे डिटेल स्क्रीन पे मैं आपसे सेपरेटली शेयर कर दूंगा, बट आज हैंडी नहीं है यूपी स्कीम्स के डॉक्यूमेंट. Sorry, can we mute? Can we go on mute? कुछ someone is not on mute. Thank you for going on mute. हाँ जी रवि जी, सो यूपी की आप मेरे को बोलेंगे, मैं आपसे सेपरेटली शेयर कर दूंगा. आज के सब्जेक्ट में था नहीं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट हम जरूर डिस्कस करेंगे. Any other questions, inputs? Happy to take
else we'll move to next section of central government schemes. Okay, so we move ahead. So in total, there are 27 schemes which are central government schemes, and there are different objective for each scheme. This talks about क्या ऑब्जेक्टिव है, किसको बेनिफिट देना चाहते हैं गवर्नमेंट एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, एंड ब्रॉड नेचर ऑफ असिस्टेंस, किस तरह का असिस्टेंस गवर्नमेंट देना चाहती है. एज ए सेड, बहुत स्निपेट्स हैं ये, दीज आर नॉट फुल स्कीम्स, these will not at all have full inclusions in on this page, because पॉसिबल ही नहीं है एक 4 कॉलम या एक पेज पे स्कीम्स लाना और 27 स्कीम्स डिस्कस करना. तो उसको बहुत ब्रीफ तरीके से बनाया गया सो दैट एज अ स्निपेट हम उसको देख सकें, क्या पर्पस है गवर्नमेंट का वो समझ सकें, और फिर उस पर्पस के हिसाब से हमारे क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, किस क्लाइंट को हमें क्या गाइड करना है, देन वी कैन पुल आउट दैट स्कीम. उस स्कीम का डॉक्यूमेंट निकालें और उसके हिसाब से कंडीशंस फुलफिल देखें क्लाइंट्स करते हैं नहीं करते, अकॉर्डिंगली उसको इन स्कीम का बेनिफिट दिला सकें. सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पुटिंग द स्निपेट्स इनटू द प्रेजेंटेशन. ठीक है जी. सो पहली स्कीम की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. बाय द नेम it says the purpose is to generate employment and increase wages in artisans. ये मेजरली आर्टिसंस के लिए है, क्राफ्ट वालों के लिए जो क्राफ्ट करते हैं, आर्टिसंस हैं. रूरल और अर्बन यूथ को बेनिफिट देने के लिए ये है. दिस हेल्प्स गिविंग सब्सिडी फॉर सेटिंग अप न्यू प्रेमाइसेस और अपग्रेडेशन ऑफ ओल्ड वंस फॉर आर्टिसंस. सो ये पहली स्कीम जिसका पर्पस भी हमने बात करी और किसके बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट करना चाहते हैं वो बात करी. सेकंड इज लार्जली फेमस क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस. फरवरी 20 में जब पहला लॉकडाउन हुआ था, तब मार्च 20 में, तब इसके बारे में बहुत डिस्कशन हुआ था. दिस इज टू गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू MSEs. Important, it is for MSEs, not MSMEs, which is micro and small enterprises. This scheme is not applicable for medium enterprises. इस स्कीम में बिना किसी थर्ड पार्टी के या बिना किसी कोलैटरल के आपको फंडिंग अवेल कराई जाती है. अप टू अ लिमिट ऑफ 100 लाख रुपीस कोलैटरल फ्री लोन दिया जाता है. दिस इज द सेकंड स्कीम. इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम. दिस टॉक्स अबाउट technology infusion, modernization of MSMEs, promotion of export of MSMEs. किसके लिए है? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो कि रजिस्टर्ड इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, एसोसिएटेड हैं, जो कि प्रमोशन और डेवलपमेंट ऑफ MSME के सेक्टर के लिए उनको ये बेनिफिट दिया जाएगा. किस सेंस में दिया जाएगा? फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑन रीइंबर्समेंट फॉर एयर फेयर, स्पेस रेंट, फ्रेट चार्जेस, एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, एंट्री एंड रजिस्ट्रेशन फी. पर्पस है हाउ कैन वी गो इंटरनेशनली, सी कॉपरेशन, टेक्नोलॉजी लेके आए, एक्सपोर्ट प्रमोशन करें. उसके लिए आपको ये बेनिफिट दिया जाएगा. आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और एसोसिएशंस के थ्रू राउट करके जो भी इंटरनेशनल कॉपरेशन के प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसमें जाना है, वहाँ का एयर फेयर देंगे, कहीं आपको स्पेस लेना है ऑनलाइन इवेंट्स में, स्पेस के लिए कोई रेंट देना है वो देंगे, कुछ इक्विपमेंट लेके जाना है, फ्रेट चार्जेस, उन सब की फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए स्कीम बनाई गई है. There is another scheme which is for marketing assistance, which provides marketing support to MSMEs domestically, internationally, दोनों में. MSME इंडस्ट्री एसोसिएशन और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो MSME सेक्टर के हैं उनके थ्रू ये बेनिफिट पहुंचाया जाता है MSMEs को. अगेन फाइनेंशियल सपोर्ट है, पार्टिसिपेशन और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एग्जीबिशन और ट्रेड फेयर्स में. नेक्स्ट स्कीम इज प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम. प्रोक्योरमेंट और मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम का पर्पस है अवेयरनेस और एजुकेशन क्रिएट करना MSMEs में किस चीज़ के लिए, इंपॉर्टेंस ऑफ मेथड्स, प्रोसेसेस ऑफ पैकेजिंग इन मार्केटिंग, लेटेस्ट पैकिंग टेक्नोलॉजी,
इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी प्रोसीजर्स, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के पोर्टल के लिए, एमएसएमई कॉन्क्लेव, बाकी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है इंटरनेशनल और नेशनल ट्रेड की, और अदर सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स जो कि मार्केट एक्सेस डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं, उसको दिया जाता है। ऑल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर्स विच आर एमएसईज। सो यहाँ पे जहाँ पे मार्केटिंग एंड सर्विस सेक्टर है, ये स्कीम्स मार्केट और सर्विस मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर है, ये स्कीम्स मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए डिजाइन करी गई हैं। जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है ट्रेड्स की, उसके लिए अभी तो ये स्कीम्स अपडेटेड नहीं है, वो उसका बेनिफिट आएगा या नहीं आएगा ट्रेडर्स को अभी नहीं आइडिया है, because schemes are not available. So this information is available on the government website. Then this talks about financial support again, जो कि पार्टिसिपेट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे डोमेस्टिक एग्जीबिशन, ट्रेड फेयर्स, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ मॉडर्न पैकेजिंग टेक्निक्स एंड वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में। इस पर्पस के लिए इस नेचर की असिस्टेंस दी जाएगी फॉर दी एमएसएमई एमएसईज। फिर स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा फोकस है गवर्नमेंट को, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए भी एक स्कीम है विच इज टू मोटिवेट यूथ, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, विच इंक्लूड्स एससी, एसटी, वुमेन, डिफरेंटली एबल्ड, एक्स सर्विसमैन, बीपीएल पर्संस, विच आर कंसिडरिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप एज ए करियर ऑप्शंस। अगर आप उसमें जा रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में जाने का प्रयास कर रहे हो, और आपको उसके लिए स्किल डेवलपमेंट चाहिए, तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा यूथ को और बाकी अदर इंटरेस्टेड पार्टीज को। स्टाइपेंड मिलता है इसमें इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनर, इन द फॉर्म ऑफ गेटिंग ट्रेनी, ट्रेनर को भी मिलता है जो ट्रेन करता है, और ट्रेनी को भी मिलता है जो ट्रेनिंग लेता है, स्किल डेवलप करता है और अपना एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकता है। ये मंथली स्टाइपेंड होता है। परफॉर्मेंस क्रेडिट रेटिंग स्कीम फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज। सो बहुत जगहों पे जब स्मॉल इंडस्ट्रीज या एमएसईज, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जब कोई भी लोन या फाइनेंस फैसिलिटी अवेल करने जाते हैं या कोई बड़ा प्रोजेक्ट अवेल करने जाते हैं, तो उनको बोला जाता है अपना कैपेबिलिटी और क्रेडिट वर्दीनेस असेस करके दी जाए। सो उसके लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, थर्ड पार्टी, उस स्मॉल और माइक्रो और स्मॉल कंपनीज को ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और उनको मोटिवेट करने के लिए दैट दे शुड गेट देमसेल्फ सर्टिफाइड ऑन द कैपेबिलिटी एंड क्रेडिट वर्दीनेस, ये स्कीम लाई गई है ताकि वो लोग इसका बेनिफिट ले सकें, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझ सकें, उस पर काम कर सकें, फिर अपनी वर्दीनेस इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी एंड क्रेडिट बढ़ा सकें। सारी एमएसईज इसको अवेल कर सकती हैं। और इसमें क्या मिलता है, जो रेटिंग एजेंसीज फी चार्ज करती हैं, उस फी में सब्सिडी मिल जाती है। अगर आप रजिस्टर्ड हैं और आप ये कराना चाहते हैं तो आप X% की सब्सिडी मिल जाती है, उसकी एक लिस्ट है। सो व्हेन वी विल गो टू द स्कीम डॉक्यूमेंट, व्हेनेवर वी आस्क फॉर, तो आई कैन शेयर दैट डॉक्यूमेंट विद यू। उसमें क्या क्या स्केल पे क्या क्या फी की सब्सिडी है, वी कैन टॉक अबाउट दैट। इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, ये जो स्कीम है इसका ऑब्जेक्टिव है फंडिंग टू खादी प्रोग्राम अंडरटेकन बाय द खादी इंस्टीट्यूशंस। जनरली खादी इंस्टीट्यूशन विलेज इंडस्ट्रीज के लिए जो खादी प्रोडक्ट बनाते हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। क्रेडिट एट द रेट ऑफ 4% पर एनम फॉर द वर्किंग कैपिटल, ये इनको मिलेगा सब्जेक्ट टू ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस एज डिटेल्ड इन द स्कीम डॉक्यूमेंट। मार्केट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट स्कीम, this is again for khadi enterprises because khadi is probably eliminating from the market. So उसको मार्केटिंग के लिए एक और स्कीम है कि अगर आप खादी एंटरप्राइज हो और मार्केटिंग वेंचर्स आपको उसमें हेल्प चाहिए, सो वी हेल्प यू विद द मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। नया देना है या एग्जिस्टिंग को स्ट्रेंथन करना है, दोनों ही केसेस में गवर्नमेंट हेल्प करती है थ्रू दी स्कीम्स। अगेन we can go through documents in detail on need basis. I can run you through specifically individually also, जब आपको चाहिए हो we can talk over a phone call or maybe zoom call separately, हम इसको डिटेल में बात कर सकते हैं। revamped scheme of fund for regeneration of traditional industries, ये स्कीम बहुत वेल स्पोकन ऑफ है, स्फूर्ति स्कीम इसको बोलते हैं। जितने भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं जो कि आर्टिसंस हैं, जो कि क्लस्टर्स में काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट ऑफ
इंडिया में there is a set of cluster works in that cluster promoting their products, but उनकी रीच उतनी नहीं है. सो उनकी रीजनरेशन के लिए, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए स्कीम बनाई गई है. जिन इंस्टीट्यूट्स की सूटेबल एक्सपर्टीज है उस पर्टिकुलर क्लस्टर को डेवलप करने के लिए, वो स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं. गवर्नमेंट ने 3 तरह से असिस्टेंस दिया है. असिस्टेंस को डिफाइन करा है: सॉफ्ट इंटरवेंशन, हार्ड इंटरवेंशन एंड थीमेटिक इंटरवेंशन. अगेन इसकी स्पेसिफिक इंक्लूजन्स हैं और उसके हिसाब से गवर्नमेंट जो है आपको इसमें हेल्प कर सकती है. Coir industry of late has not seen growth, so coir industry के technology upgradation के लिए scheme है next, to provide modern infrastructure facilities to the production units resulting in improvement of productivity और quality. ये scheme entrepreneurs के लिए है जो self help groups, association, enterprise और small medium cooperative public sector interested in production of वैल्यू एडेड कॉयर और कॉयर ब्लेंडेड आइटम्स में है, उनको ये स्कीम का बेनिफिट दिया जाता है. असिस्टेंस है 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी procured by the coir units for modernization, upgradation and establishing a unit. इस केस में आपको दिया जाता है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए स्पेसिफिक आपको कॉयर के लिए कुछ करना है, आपको गवर्नमेंट से हेल्प चाहिए, तो वो रिसर्च और एट अ लेबोरेटरी लेवल पे जो आउटकम आते हैं उसको प्रमोट करने के लिए स्कीम है. वो जो लेबोरेटरी पे रिसर्च है उसको फील्ड पे कैसे इंप्लीमेंट करना है उसमें गवर्नमेंट हेल्प करती है. टेस्टिंग और सर्विस फैसिलिटी कैसे ऑन द ग्राउंड फील्ड तक लेके जानी है उसमें गवर्नमेंट हेल्प करती है. किसको बेनिफिट मिलता है? यूनिवर्सिटीज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉयर वर्कर्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड कॉयर वर्कर्स, इनको ये बेनिफिट मिलता है बिकॉज दे हेल्प spread this benefit at